Hello students, welcome back. Today we are going to start our lecture number 4 on the chemical kinetics. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा था. आज हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालेंगे. सो वी विल बी फर्स्ट ड्राइविंग द integrated rate law for zero order reaction. For zero order reaction, to drive this integrated rate law, let us consider a journal. Let us consider a journal zero order reaction. Journal zero order reaction, that is A to give you product. We are supposing that this is a zero order reaction. Now if this reaction is a zero order reaction, then the rate of this reaction is not going to depend upon the concentration of reactants. Concentration of reactant पे डिपेंड नहीं करेगी. कहने का मतलब ये है, throughout this reaction, with the passage of time, this reaction will go on a constant speed. अगर हम इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखें तो इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन माइनस डी ए बाई डी टी इट विल बी इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 0. नाउ वी नो दैट समथिंग raised to power 0 is always 1. So this equation will become equal to k into 1, that is k. Now we rearrange this equation as minus dA by dt is equal to k. अगर हम dt को ले जाएं दूसरी साइड में तो it will be equal to minus dA by dA, that is equal to k into dt. To get the integrated rate law, हमें इस रिएक्शन का अगर इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालना है, then we will be integrating this expression within the limits. When your time t was 0, your concentration A was equal to initial concentration of A, that is A naught, and when time t was equal to t, then your concentration was equal to A. If we integrate this equation, then the integration of this equation will give you minus A, limits are from A naught to A, is equal to T 0 to T. dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, dA का इंटीग्रेशन a हो जाएगा, माइनस साइन बाहर है. नाउ वी विल बी सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट्स. सो यूर आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग लिमिट इट विल बी इक्वल टू a. पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट a नॉट, दैट इज t माइनस 0. इसको अगर रीअरेंज कर दें तो a नॉट माइनस a, और इसके साथ k लगा हुआ है बाहर जो हमने छोड़ दिया. सो इट विल k इंटू टी. सो योर k विल बी इक्वल टू a नॉट माइनस a divided by t. So this is your equation number 1, and this is the integrated rate law for the zero order reaction. ये integrated rate law है zero order reaction के लिए. हम इस इक्वेशन को एक और तरीके से लिख सकते हैं. ए को उधर ले जाइए, टी को उधर ले जाइए, और वी कैन आल्सो राइट
because we will be using that in plotting a graph between time and the concentration. So minus kT plus A naught is equal to A. This is also the integrated rate law for zero order reaction. That is the final concentration of the reactant in the reaction mixture of a zero order reaction is equal to A naught minus kT, where K is, as you know, it is velocity constant or specific rate or rate constant. अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज करें और कंपेयर करें इसको विद एन इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, देन इट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू c प्लस mx. तो आपका जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है एट एनी गिवन टाइम a, दैट विल बी योर y, your t is x and a naught is your initial concentration of the reactants. It means if we plot a graph, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें between the time and the concentration of reactants at time t, then this equation, this graph should come out to be a straight line with negative slope. Slope will be equal to minus kt, minus k, sorry. Slope will be equal to minus k and your intercept will be equal to A naught. So this is a graph for zero order reaction. Now another important term during the discussion of this is half-life time. Half-life time of a reaction. Half-life time of a reaction means that time, half-life time वो होता है जिसके अंदर आपके रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर 1/2 ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाए. तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज time taken by a reaction to reduce concentration of reactants to 1/2 of initial concentration. 1/2 of initial concentration. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी एक डेफिनेशन हाफ लाइफ की. दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? इट इज टाइम टेकन बाय ए रिएक्शन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन. कहने का मतलब है वो टाइम जिस टाइम के अंदर आपका A, दैट इज द फाइनल कंसंट्रेशन टाइम T इज इक्वल टू A naught बाई 2. जिस टाइम के अंदर आपकी ये कंसंट्रेशन आधी हो जाएगी उसको हम बोलेंगे हाफ लाइफ, और इसको हमेशा डिनोट करते हैं T हाफ से. हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए रिएक्शन इज डिनोटेड बाई T हाफ. वी कैन ड्राइव ए रिलेशन for T half of a reaction. To do that, let us go back to your integrated rate law. A naught minus A divided by T is equal to K. This was the integrated rate law for the zero order reaction. T को उधर ले जाए. This implies that A naught minus A divided by K is equal to T half. Now we know, sorry T लिखिए यहाँ पे, तो इसमें जब T हाफ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? T हाफ पे A will be equal to A naught by 2. ये पुट करेंगे हम, तो हमारा A naught minus A naught by 2 divided by K. इसको सॉल्व करें
तो इट विल बी इक्वल टू A naught by 2K. T half for the zero order reaction is given by A naught, that is the initial concentration of reactants, divided by 2 into the rate constant. So if you have look at this equation number 2, what we find is that T half of your zero order reaction is dependent on इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कहने का मतलब यह है कि अगर हमने कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन स्टार्ट की और 1 मोल से स्टार्ट की एंड एट दैट टाइम इट्स T हाफ 10 मिनट था, तो अगर 2 मोल से स्टार्ट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 20 मिनट्स हो जाएगा, क्योंकि दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आप जैसे जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे T हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी बढ़ता चला जाएगा। सो दिस इज अबाउट द इंटीग्रेटेड रेट लॉ एंड हाफ लाइफ टाइम ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो नाउ लेट अस discuss some zero order reactions or examples of some zero order reaction. Although zero order reactions are rare, very uncommon, but under certain conditions some of the reactions take place as zero order reaction. First example of zero order, अगर हम बात करें example of zero order reaction, so I am giving you 2 or 3 examples. The first example is reaction between hydrogen gas and chlorine gas in presence of sunlight to give you 2HCl gas. It is a zero order reaction in presence of light, और जो इसका रेट है वो सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है. It does not depend upon the concentration of hydrogen or chlorine. The second example is decomposition of nitrous oxide on platinum surface by heating to give you 2N2 gas plus O2 gas. This is the second example. Similarly, ammonia की decomposition at platinum about 1075 केल्विन के आसपास टेम्परेचर है रफली. N2 gas plus 3H2 gas. These are the some examples of zero order reactions. जैसे अगर मैं इनमें से इसकी बात करूं, ये प्लेटिनम सरफेस के ऊपर अमोनिया बहुत ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब हो जाती है and that make it independent of the concentration. Rate becomes independent of the concentration. So this is few examples of the first zero order reaction. Now let us drive the integrated rate law for first order reaction. So next is integrated rate law for first order reaction. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ ड्राइव करना है हमने. अगेन लेट अस कंसीडर ए जर्नल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. Journal first order reaction as A to give you product. Now if it is a first order reaction, its differential rate law will be minus dA by dt is equal to K into concentration of A raised to power 1. Because it is a first order reaction, we rearrange it minus
dA by A is equal to K into dt. To get the integrated rate law, again we have to integrate this within the limit A naught to A. जब आपका टाइम t था 0 तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की थी A नॉट के बराबर, विच इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जब t बराबर t था तो आपकी फाइनल कंसंट्रेशन A थी टाइम t पे। अब अगर हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करें तो dx बाई x, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, log x। तो ये हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a लिमिट्स a नॉट टू a, और यहां आपका k और dt का इंटीग्रेशन आ जाएगा t, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू t। नाउ इफ इट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ लिमिट्स, देन माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a नॉट, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट, दैट इज k इंटू t माइनस 0। माइनस साइन को अंदर ले जाएं तो नेचुरल लॉग ऑफ a नॉट माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a इज इक्वल टू kt, या हम इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ a नॉट अपॉन a इज इक्वल टू k इंटू टी, बिकॉज log m माइनस log n इट इज इक्वल टू log m बाई n। सो इंटीग्रेटेड रेट लाइज k इज इक्वल टू 1 बाई टी इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a नॉट बाई a। अगर हम नेचुरल लॉग को कन्वर्ट कर दे log बेस 10 में, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद ए फैक्टर 2.303 डिवाइडेड बाई t इंटू लॉग ऑफ a नॉट बाई a। नाउ दिस लॉग इज ऑफ बेस 10, पहले नेचुरल लॉग था, अब बेस 10 के लॉग में कन्वर्ट कर दिया आपने, तो k इज इक्वल टू दिस इक्वेशन इज योर इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। ये हमारा इन द फॉर्म ऑफ लॉग है। वी कैन आल्सो राइट एन इंटीग्रेटेड रेट लॉ इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर हम यहां से आगे प्रोसीड करें, इस नेचुरल लॉग को हटा दें, तो आपका a नॉट बाई a दैट विल बी इक्वल टू k इंटू टी। सॉरी, e की पावर kt। लेकिन इसमें हमें a नॉट बराबर a इंटू ई की पावर के टी, ये आ गया। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a विल बी इक्वल टू a नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी। ये नीचे आएगा, उसको ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर माइनस के टी। तो ये जो है इक्वेशन, वो आपका अगर इक्वेशन नंबर 1 माने फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो ये आपकी इन टर्म्स ऑफ लॉग है एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। सो दीज टू आर द रिलेशन फॉर द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम इस इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन टाइम एंड कंसंट्रेशन of reactants, then concentration of reactants will decrease exponentially with the passage of time, exponentially. If we use this equation,
अगर इस इक्वेशन को यूज करके ये ड्रा करें तो ये ग्राफ आएगा हमारा। So this is the graph from the exponential equation. Now let us again start from this. हमारा natural log of a naught माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a ये बराबर था kt के, जिससे हमने ये रिलेशन लिखा था। अगर हम इसको रीअरेंज करें तो नेचुरल लॉग ऑफ a दैट विल बी इक्वल टू माइनस k इंटू टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ a नॉट। अगर हम इस नेचुरल लॉग को चेंज कर दें लॉग बेस 10 में तो लॉग a 2.303 इज ए मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर कन्वर्जन माइनस k इंटू टी प्लस 2.303 लॉग a नॉट। 2.303 से डिवाइड कर दे दोनों तरफ तो लॉग a विल बी इक्वल टू माइनस k अपॉन 2.303 इंटू टी प्लस log of a naught. This is another way of writing the integrated rate law for first order reaction. अब इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें विद इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन mx plus c, it means if we plot a curve between time t and the log of the concentration of the reactant at a given time, then it should be a straight line with a negative slope. अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, इधर लेंगे टाइम और इधर हम लेंगे कंसंट्रेशन का लॉग, तो हमारी जो इक्वेशन आएगी इट विल अगेन बी ए स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, और आपका स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी इक्वल टू माइनस के 2.303। और अगर शुरू से करें इसको यहां से 0 टाइम से करें प्लॉट तो दिस इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू लॉग a नॉट। सो दिस विल बी द ग्राफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब अगर हम इससे t हाफ निकालना चाहें, हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ टाइम है हमारा रिलेशन क्या था, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग ऑफ a नॉट बाई a, ये हमने ड्राइव किया था। अगर हमने हाफ लाइफ टाइम निकालना है देन एट हाफ लाइफ टाइम योर कंसंट्रेशन a विल बी इक्वल टू a नॉट बाई 2 एट t हाफ। देयरफॉर t हाफ किसके बराबर हो जाएगा, t हाफ विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन k, मैं इस k को इधर ले गया हूं, t को इधर ले आया हूं, इंटू लॉग ऑफ a नॉट डिवाइडेड बाई a नॉट बाई 2। a नॉट से a नॉट कट जाएगा, लॉग ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, सॉरी 2.303 k इंटू लॉग ऑफ 2, लॉग 2 बेस 10 it is 0.3010, so 2.303 into 0.3010 upon k, that is 0.693 upon k। अब अगर आप इस रिलेशन को देखें for t half of first order reaction,
देन इन दिस एक्सप्रेशन देयर इज नो कंसंट्रेशन टर्म, यहां पे कोई कंसंट्रेशन टर्म नहीं है इस साइड में. इट मींस हाफ लाइफ टाइम of first order reaction is independent of the initial concentration. It does not depend upon the initial concentration. Meaning thereby is first order reaction हमने 1 मोल से स्टार्ट की या 10 मोल से स्टार्ट की या 100 मोल से स्टार्ट की, its half life will be always same. So this is now the next thing which we are going to discuss, it is average life of a first order reaction. Average life of a first order reaction, it is denoted by lambda, and it is given by lambda is equal to 1 by k. It is equal to reciprocal of the rate constant or the specific rate of the reaction. ये एवरेज लाइफ ऑफ रिएक्शन हमने क्यों डिफाइन की है? हम इस चैप्टर के शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा रिएक्शन प्रोग्रेस करता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती चली जाती है, एंड रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर के अंदर इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, घटता चला जाएगा. और ये with the passage of time इतना कम हो जाएगा that for complete conversion of reactants it will take a long time, almost infinite. So for that purpose we have defined this average life of the reaction, lambda is equal to 1 by k. आप अगर चाहें तो lambda एवरेज लाइफ को यूज़ करके t की जगह अगर हम यूज़ करें इसको, तो आप अमाउंट लेफ्ट आफ्टर एवरेज लाइफ ऑफ ए रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड. आप कर सकते हैं उसको कैलकुलेट, क्योंकि उसके अंदर जो है आपका टाइम जो है दैट विल बिकम इक्वल टू एवरेज लाइफ ऑफ द रिएक्शन दैट इज़ लैम्डा. तो उससे आप निकाल सकते हैं, इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं है. जैसे हमने लिखा था k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए. तो बस आपने क्या करना है, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए. t की वैल्यू 1 बाई के पुट कर दें यहाँ से, इट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए. कैसे क्या कट गया? सो यू कैन कैलकुलेट लॉग ए नॉट बाई ए दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2.303, और यू कैन से दैट ए नॉट बाई ए इट इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ 1 अपॉन 2.303. अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 1 अपॉन 2.303 इट विल बी एंटीलॉग ऑफ 0.4342. अगर हम इसका एंटीलॉग लें .4342 का एंटीलॉग it comes out to be 2.717. यहाँ से हम निकालेंगे A बराबर है A नॉट डिवाइडेड बाई 2.717. सो it will come out to be
0.368 ऑफ ए नॉट परसेंटेज में निकालें तो लगभग 36.8% बचेगा इनिशियल कंसंट्रेशन का. दिस विल बी द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर एवरेज लाइफ. 0.368 ए नॉट परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करके 36.8 इंटू ए नॉट 36.8% बटेगा एवरेज लाइफ के बाद. सो दिस इज अबाउट द एवरेज लाइफ. अब यहां पे बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर I would like to discuss another derivation for integrated rate law for first order reaction जो कि बहुत जगह यूज होता है. That is K is equal to 2.303 upon T into log of A upon A minus X. आप बहुत जगह ये रिलेशन पाएंगे और यूज भी करेंगे. तो ये रिलेशन कैसे आया? वी कैन ऑल्सो ड्राइव दिस रिलेशन. अगेन कंसिडर ए जनरल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए टू गिव प्रोडक्ट. हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसिडर करी. ए प्रोडक्ट दे रहा है. जब T इज इक्वल टू 0 है तो इसकी कंसंट्रेशन, हमारी ए की कंसंट्रेशन है ए मोल पर लीटर. जब T बराबर T हो गया, आउट ऑफ दिस A मोल्स, आउट ऑफ दीज A मोल्स ऑफ A, X moles have reacted. X moles have reacted. Let X moles of A has reacted in time T. Then amount of A left A left after time T कितना हो जाएगा? हमारे पास A था, X रिएक्ट करके will be A minus X, will be A minus X. तो हमारा जो इसका रेट ला बनेगा वो बनेगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स की पावर 1. टाइम टी पे जो रेट आएगा रिएक्शन का वो आएगा dx बाई डी टी के इंटू ए माइनस एक्स की पावर 1. ऐसा क्यों आएगा? अब ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि x इज पॉजिटिव इन दिस केस, जो अमाउंट रिएक्ट कर रहा है. तो आप इस इक्वेशन को दोबारा से रीअरेंज कीजिए. हमारा dx अपॉन a माइनस एक्स विल बी इक्वल टू k इंटू डी टी. टू गेट द इंटीग्रेटेड लॉ, इंटीग्रेट दिस. t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू t, x इज इक्वल टू x. जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, द इंटीग्रेशन ऑफ दिस साइड विल बिकम इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स. आपको पता ही है इंटीग्रेट करते तो तब क्या होता है? dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x. और ये नीचे टर्म a माइनस एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा, इसका डिफरेंशियल आएगा -1, तो उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो द इंटीग्रेशन विल बी माइनस ln a माइनस एक्स. और यहां पे x इज इक्वल टू 0 टू x, और इधर आपका k और t इज इक्वल टू 0 टू t. वैल्यू पुट कर दें. माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a. जब x इज इक्वल टू 0 होगा, t इज इक्वल टू 0 पे x 0 पुट किया तो ln a आ जाएगा. दैट इज इक्वल टू k इंटू टी माइनस 0. सॉल्व कर दें तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू k इंटू टी. ये आपका log m बाई n हो गया. log a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटू टी. अगर इस log को हम log 10 में कन्वर्ट करें तो k विल बिकम इक्वल टू 2.303 अपॉन t इंटू लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स.
इससे भी आप हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। जब आप हाफ लाइफ की बात करेंगे तो x की वैल्यू a/2 पुट कर देंगे, अगेन यू विल गेट द सेम रिलेशन फॉर द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो दिस इज हाउ यू विल ड्राइव दिस रिलेशन। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। So I think this is sufficient for today. Tomorrow I will be taking a very general relation, nth order reaction के लिए integrated rate law डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप किसी भी ऑर्डर के लिए उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। Hello everyone. If you found the content helpful, so kindly share this video with your friends. Also, don't forget to like, share, subscribe. Thank you. Happy learning.